Hello friends. So today we are starting the interface. So in previous lecture we talk about talk the about the M phase and interphase and cell cycle. So cell cycle start with the interphase. Now the interphase is the growth phase. It's called growth phase also. मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज इज ऑल्सो ग्रोथ फेज बिकॉज दे सिंथेसाइज इन न्यू ऑर्गेनल्स, न्यू एंजाइम्स, न्यू प्रोटीन एंड ऑल, वो सब वो सिंथेसाइज करता है इन दी इंटरफेज. नाउ द इंटरफेज इज हैव द थ्री डिफरेंट स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज इज G1, इट्स कॉल्ड गैप 1 phase, then S phase, and then G2 या gap 2 phase. So there are three phases are there: the G1 phase, S phase and G2 phase. Now the G1 or gap 1 phase, what happened during this phase is, so the in the G1 phase the cell is just formed and it have the small sorry, it has a small size. So now they are become big or large. How they become large and big? Because they synthesize the organelles, they synthesize the protein, they synthesize the enzyme. Because after the G1 phase there is the S phase is there. So because of S phase is the synthesis phase. During S phase the cell synthesize the new DNA, rather DNA replication is occurs during this phase. That's why G1 phase है, उसमें जो enzyme which required for the synthesis of DNA वो बनाता है G1 phase. सो G1 फेज के अंदर एंजाइम्स भी बनते हैं, G1 फेज के अंदर प्रोटीन्स भी बनते हैं, G1 फेज के अंदर ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होता है. सो ये सब होता है G1 फेज में. नाउ द S फेज, S फेज के दौरान क्या हो रहा है? DNA रेप्लिकेशन. सो रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन द S फेज. सो द अमाउंट ऑफ DNA विल इंक्रीज इन डबल अमाउंट. रदर जो DNA जितना भी DNA है, रदर 2C DNA है तो इट्स बिकम 4C DNA. ओके, बट द क्रोमोसोम नंबर आर द सेम. द क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन सेम बिकॉज देर आर 23 pair ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन. ओके, सो इट रिमेन 23. ओके, the amount of DNA will increase, the amount of DNA will duplicate it, but the chromosomes are same. So if there are 23 chromosomes, then it will remain 23 because the duplication of DNA is happened. If this is the single chromosome, so after the duplication of DNA, it will tetrad. ये कैसा हो जाएगा? टेट्राड हो जाएगा. अगर ये सिर्फ उसके पास 2 आर्म है, सो आफ्टर द DNA रेप्लिकेशन इट बिकम्स द टेट्राड क्रोमोसोम. इट इज कॉल्ड टेट्राड क्रोमोसोम. सो दैट वाई द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ S phase, but the DNA quantity is double. Okay, now the last or G2 phase. So during this G2 phase the protein synthesis and RNA synthesis are there. So protein or RNA or protein and RNA बनते हैं and they increase the cytoplasm, and now the cell is become big or cell is become large. That's why now they are comes into the dividation phase or M phase. So this is all about the interphase. But there are some cells which have the different phenomena. Because some cells can't divide, some cells after the उनके जो formation है वो बन चुके हैं, after they form they can't divide further.
they just stop their dividing and they arrest in the particular phase. Okay, so like cardiac cells, the cardiac cells are the cardiac cells which are this type of cell कि जो बनने के बाद अगर उनकी जरूरत नहीं है तो they can't divide if if there is no necessary to divide, so they can't divide, वो आगे divide नहीं होते and they will arrest in after the G1 phase. G1 phase पूरा होने के बाद अगर एक बार वो बन गए हैं, okay, so after their formation they pass through a G1 phase, means they increase their size, but वो DNA synthesize नहीं करते because they can't divide, they don't synthesize DNA. Okay, so this type of cell, this type of phase is called G0 phase, or quiescent phase or quiescent cells. Okay, so this type of cell or this type of phase is called G0 phase. After the G1 phase, वो G1 phase के बाद stop हो जाते हैं, उनमें G1 phase होता है, but after G1 phase it will stop and they arrest into the G0 phase. G0 means stable phase, वो अभी आगे divide नहीं होते. Okay, quiescent cell बोलते हैं इसको, quiescent cell. Okay, so or quiescent phase, G0 phase. Okay, so एक ये cells की phenomena भी है. Okay, so this is all about the interphase. So G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है and G0 phase. ओके, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर फिर से मुझे कोई सेल डैमेज हो गए, कार्डियक सेल्स की बात कर रहा हूँ, अगर कोई सेल्स डैमेज हो गए, अगर कोई सेल में कोई प्रॉब्लम आ गई है और फिर से मुझे सेल डिवीजन स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट होगा विद द एस फेज, क्योंकि G1 फेज ऑलरेडी हो चुका है. सो G0 फेज है, उससे आगे फिर से सेल डिवीजन, दे कैन स्टार्ट द सेल डिवीजन इफ देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस आर देयर. सो दो वो ऐसा कर सकते हैं ड्यू टू सम रीजंस. ओके, अगर सेल डिग्रेड हो गया और दूसरे सेल में कोई डैमेज हो गया तो ही, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सो ये सेल्स हैं वो आगे डिवाइड नहीं करेंगे. ओके, वो आगे डिवीजन नहीं करेंगे. ओके, सो दिस ऑल अबाउट द इंटरफेज. ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं विद द एम फेज. So now the M phase है वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज द माइटोटिक डिवीजन और माइटोसिस. द सेकेंड वन इज meiosis. First one is mitosis, second one is meiosis. So in the mitosis, if there is a cell which have the 23 pair of chromosome, 23 pair of chromosome, वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाएगा और दोनों डॉटर सेल्स में 23 पैर क्रोमोसोम होंगे. उन दोनों के अंदर 23 पैर क्रोमोसोम होंगे. ओके, means the number of chromosomes are same in the parent as same in child or daughter cells. यानी पेरेंट के जो सेल्स है उसी के सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होता है और डॉटर सेल बनते हैं, उनके अंदर पेरेंट के जितने भी क्रोमोसोम्स है उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होते हैं. ओके, दिस इज द सिंपल माइटोसिस. इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट in the parent and daughter cells. Okay, it will happen in the animal cell. Animal cells जो है उनके cells में except germ cells,
उन सब में सोमेटिक सेल्स, जितने भी एनिमल सेल्स के हैं सोमेटिक सेल्स, उन सब में ये टाइप का माइटोसिस होता है। इन प्लांट सेल, यानी जितने भी डिप्लॉयड है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको बोलते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो जितने भी डिप्लॉयड सेल्स हैं, एनिमल सेल्स डिप्लॉयड हैं, उन सब में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। बट जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर एक डिफरेंट फिनोमेना है कि प्लांट सेल के अंदर अगर सेल डिप्लॉयड है और सेल हैप्लॉयड है, इन दोनों के अंदर माइटोसिस हो सकता है। ओके, इट इज हैपेंड इन द प्लांट सेल ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन। ओके, उनके जो रिप्रोडक्शन है उसको बोलते हैं इंट्रा और इंटर रिप्रोडक्शन और इंट्रा सेक्सुअल साइकिल जो है उनकी, कि जिसमें एक हैप्लॉइड स्टेज आता है, एक डिप्लॉइड स्टेज आता है, जो आप पढ़ेंगे इन द 3rd चैप्टर। ओके, सो उसके अंदर आएगा आपको कि प्लांट के अंदर हैप्लॉइड साइकिल भी होती है एंड डिप्लॉइड साइकिल भी होती है, दोनों हो सकती है। सो इनकी जो साइकिल है उनके अंदर जो हैप्लॉइड सेल्स हैं एंड डिप्लॉइड सेल्स हैं, उन दोनों में माइटोसिस होता है। लेकिन प्लांट्स एनिमल सेल्स जो हैप्लॉइड है उनमें ही डिप्लॉइड है उनमें ही माइटोसिस होता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है कि अ सिंगल सेल जो डिप्लॉइड है यानी 2n है, उससे दे फॉर्म दी 4 सेल्स, यानी एक मियोसिस से कितने सेल्स होते हैं? 4 सेल्स बनते हैं एक मियोसिस से। और इस मियोसिस में ये चारों के चारों सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मींस n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी यहां पे 23 पैर होंगे तो यहां पे सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे। 23 पेयर मींस 46 क्रोमोसोम इज देयर एंड यहां कितने होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ओनली। ओके, सो दिस इज द मियोसिस। मींस ये माइटोसिस है वो एक स्टेज में कंप्लीट होता है, द फर्स्ट थिंग इज, एंड द सेकेंड थिंग इज मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। If you observe clearly, the second stage of meiosis is somewhat similar to mitosis. देखिए यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे 23 हो गए एंड देन फिर से 23, यानी ये जो दूसरा स्टेज है इट इज सिमिलर टू दी माइटोसिस। ओके, सो द सेकेंड स्टेप ऑफ मियोसिस कंप्लीटली सिमिलर टू दी माइटोसिस। अब माइटोसिस में मैंने बता दिया कि एनिमल सेल के जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं वो सब में माइटोसिस होता है। सो मियोसिस कहाँ पे होता है? जो गैमेट फॉर्म करते हैं, जो सेल्स गैमेट फॉर्मेशन करते हैं उन सेल्स के अंदर मियोसिस होता है। मींस दी जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, यानी अगर ओवरी है सो ओवरी के सेल्स की जिसमें रेप्लिकेट द ओवरी के सेल्स के जिसमें जर्म सेल्स है, जिसमें से ओवा बनने वाला है, उन सब के सेल्स में ये होगा। यानी जो गैमेट्स हैं उन गैमेट्स, वो सब सारे गैमेट्स कैसे हैं? गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ओके, जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो सब हैप्लॉइड हैं। ओके, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उस सब में, यानी जो गैमेट जिसमें से बन रहे हैं, जर्म सेल्स जिसको बोलते हैं जर्म सेल्स, वो जर्म सेल्स आर 46। The germ cells have the 46 chromosome and the meiosis is happening to the germ cells. ओके, जो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं उन सेल्स के अंदर मियोसिस होगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दी माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम
माइटोसिस के आगे के फेज जो है यहाँ से माइटोसिस से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज यहाँ तक रखता हूँ। ओके, गुड बाय।